Morning everyone. So today we are going to revise chapter 14, that is chemical effects and its electric current. Okay, so let's start our class. Okay, so this is the first portion of the chapter, that is what are the various electrical components and their symbols which we will use further. Okay, so the electrical cell, you can see the two with the help of these two lines and that it is visible. Electric bulb, okay, the switch, how it is represented, switch, and when it is off you can see that there is no connection between the two points. Then the battery, how it is represented, then the wire. Okay, why I'm telling you these symbols, because you can be given the symbol of any electrical component and you will be asked in the MCQ form that what this symbol represent, whether it represents a battery or it is representing a switch or it is representing a wire. So you should be aware of these particular symbols which are being given to you. Okay, is it clear? Okay, so now first let's move on further. What is an electrical component? An electrical component will be an element of an electric circuit which helps in the functioning. That means any of this component will be helping the circuit to function. Okay, if any one of this circuit component is missing, the circuit will not function. Okay, it will stop. Okay, so the what is this? What is the function of this electrical circuit? What is the use of this electrical circuit? This electrical circuit actually helps in the flow of the electricity. If this electrical circuit is broken from anywhere, there will be no flow of electricity, and the particular machine will stop functioning. This electrical circuit is used in the various purpose like electrical motors and bulb or fan. Everywhere it is used. Okay, now coming to the next point. Now what is a battery? What is a battery? Battery is actually a combination of two or more cells. There is a difference between battery and cell. Okay, there is a difference between battery and cell. बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमको एक बैटरी देना, ऐसा नहीं है. बैटरी इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सेल्स. सेल जुड़ के बैटरी बनाते हैं, याद रखना इस बात को. सेल जुड़ के बैटरी बनाते हैं. When cells combine, then battery is formed. Not the cell of biology, cell of chemistry. जो छोटे छोटे जो हमारे जैसे एक एक सेल डालते हैं ना हम टॉर्च में, तो वैसा. सो the cell various cells combine to form a battery. So battery is combination of two or more cells. Okay, जैसे आप लोग का कार बैटरी होता है, वो कार बैटरी है, वो सेल नहीं है. क्यों? उसमें बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन है. द बैटरी इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स. ओके, और इस बैटरी में क्या होगा, नेगेटिव एक एक बैटरी का नेगेटिव जो है, नेगेटिव टर्मिनल जो रहेगा वो दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्टेड रहेगा. अब ये बैटरी का कहाँ पे यूज होता है? बैटरी तो बहुत जगह यूज होती है. टॉयज में होता है, रिमोट का कंट्रोल्स में होता है, टॉर्चर्स, ट्रांजिस्टर, सब जगह यूज होता है. ओके, next there is a diagram of electrical circuit. You can see an example of electrical circuit I have shown here in the picture. You can see, आपको दिख रहा है कि एक सेल के जरिए बल्ब कनेक्टेड है और बल्ब ग्लो कर रहा है, और बाजू में आपने सर्किट डायग्राम भी दिख रहा है. तो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको एक सर्किट डायग्राम, एक सर्किट दिखा रहा है जिसमें आपको प्रॉपर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है और बल्ब जो है ग्लो हो रहा है. सर्किट है ये. सर्किट में सारे कंपोनेंट्स आप देख सकते हो. बैटरी भी है, वायर भी है, बल्ब भी है. ओके, और ये जो नेल्स जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? आप कर्सर देख सकते हो. ये दो नेल्स दिख रहे हैं, ये दो टर्मिनल का काम कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, क्लियर? अब नीचे देखो, बैटरी जो होता है, मैंने क्या बोला, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. तो कॉम्बिनेशन आप क्या है, दो सेल का भी हो सकता है, चार सेल का भी हो सकता है. आपको दो एग्जांपल दिया, एक में दो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का है, एक में चार कॉम्बिनेशन है. ठीक है, क्लियर है? तो दिस वे यू कैन मेक द बैटरी. ओके, अब इलेक्ट्रिक सर्किट हमको जो बनाता है, अभी आप देख रहे हो मैंने ये इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ किया है, यहाँ पे ड्रॉ है. कैसे ड्रॉ करेंगे ये? वाई हाउ वी विल ड्रॉ दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑन द पेपर. ओके, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ करने के लिए हमको जो सिंबल्स, मैंने जो आपको अभी सिंबल्स जो यहाँ जो प्रीवियस पेज में आपको दिखाया था, जो सिंबल्स जो रहते हैं बैटरी के, बल्ब के, वायर का, ये ऑल दिस सिंबल्स यू हैव टू यूज एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द
डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, क्लियर है। अब ये देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे सी is the where the cursor is moving, this electrical circuit is visible to you. So this is the way how you are drawing. Okay, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे there will be a this diagram is consisting of a key that is acting as a switch for the circuit. Okay, ये switch जो है ऐसा कोई नहीं है कि जैसे यहाँ पे ये नहीं है कि जैसे ये आप दिख रहा है, ये जो मेरा कर्सर है ये 2 पॉइंट्स वाला 2 डॉट्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्विच जरूरी नहीं है कि यहाँ नीचे बने, तो अभी आप किसी भी डायरेक्शन, ये जो बॉक्स के किसी भी डायरेक्शन में आप बना सकते हो स्विच को। ओके, ओपन सर्किट मतलब ये जो बीच की जो लाइन है दो डॉट के बीच में, आपको ओपन सर्किट का मतलब होता है व्हेन द स्विच इज ऑफ। ओके, जब स्विच ऑफ होता है तब हम उसको बोलते हैं ओपन सर्किट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इनकम्प्लीट सर्किट। ओके, सर्किट को हम ओपन सर्किट भी बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट भी सर्किट भी बोल सकते हैं। इन द केस दिस पर्टिकुलर स्विच इज ऑफ। और ये स्विच ऑफ कब होगा आपका, जब आपको कैसे पता चलेगा ये स्विच ऑफ है कि नहीं, तो जब आपको कैसे पता चलेगा, ये जो डॉट्स के बीच के जो वायर हैं अगर वो कनेक्टेड नहीं है, जो बीच दो डॉट के बीच की जो लाइन है वो कनेक्टेड नहीं है, तो मतलब वो ऑफ है। और अगर वो क्या दिस टू डॉट्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, दैट मींस वो सर्किट जो है वो कैसा है, क्लोज्ड सर्किट है, और वो कैसा है, कंप्लीट सर्किट है। क्लियर है। अगर ये दो डॉट्स के बीच का जो लाइन जो है वो आपको कनेक्टेड दिख रहा है, मतलब वो क्लोज्ड सर्किट है। और ये जो अगर लाइट्स ये दोनों के बीच का जो डॉट्स के बीच का जो लाइन है वो अगर कनेक्टेड नहीं दिख रहा है, तो मतलब वो ओपन सर्किट है, यानी कि सर्किट जो है इनकम्प्लीट है। ओके, दूसरी चीज, ये तो स्विच हुआ, स्विच का ओपन कब होगा, ऑफ कब होगा, ओपन सर्किट कब है, क्लोज सर्किट क्या, ये तो मैं बता दिया। अब ये जो आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है जिसके ऊपर आपने एक ग्लो करता हुआ दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है, दिस सर्किट इज पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग द bulb. Okay, this portion is representing the bulb. Okay, is it clear? And in the bulb you can see that this inside, ये जो आपका ये जो क्या बोलते हैं twisted portion दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, filament है। Okay, is it clear? This twisted portion is representing the filament of the bulb. Is it clear? So this way you can understand what is an open circuit, what is a closed circuit, and what else is there in the circuit. Bulb is there, also there is these two lines, you can see these two lines are representing the battery. Okay, clear है। अब क्या होता, what happens when the filament of a bulb breaks? filament क्या होगा, अगर filament बल्ब का ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, बल्ब का जो फिलामेंट है अगर ब्रेक हो जाएगा तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे आप देख सकते हो, ये देखो ये जो पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिलामेंट को। अगर ये फिलामेंट टूट जाएगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। ओके, सो याद रखना, इफ द बल्ब, इसलिए जब आप देखो बल्ब फ्यूज हो गया बोलते, बल्ब फ्यूज होने के बाद जलता नहीं है। बल्ब फ्यूज होने के बाद क्यों नहीं जलता, फ्यूज उड़ गया, बल्ब का फ्यूज उड़ गया बोलते हैं ना। तो आप देखना उसमें बल्ब का जो खराब हुआ वाला बल्ब है उसका फिलामेंट टूट जाता है। फिलामेंट टूट जाएगा मतलब अंदर का जो फिलामेंट टूट गया, मतलब सर्किट का टूट गया, सर्किट टूट गया तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं होगा और वो ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप देखेंगे तो व्हेन इलेक्ट्रिक, अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास होगा वायर के थ्रू, तो वो क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और देयर विल बी हीटिंग अप ऑफ द वायर। ओके, जो वायर जो है वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। अब ये कैसे होगा, आप जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आप डेली अपने कपड़े आयरन करते हो, अपने कपड़े आयरन करते हो तो पहले आप आयरन का स्विच जो है वो स्विच बोर्ड में लगा के आप स्विच ऑन करते हो, तब क्या होगा, आप तब जाके अपने कपड़े प्रेस करते हो। व्हाट इज दैट, क्यों हो रहा है, क्यों उससे प्रेस कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया उस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, और वो प्रेस के सरफेस जो आयरन पार्ट है उसके पास वो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, और क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण गर्मी प्रोड्यूस हो रही है, और वो जो आयरन का सरफेस है वो गर्म हो जा रहा है, और जिसके जरिए आपके कपड़े प्रेस हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो आप लोग किचन में यूज करते हैं, इंडक्शन वगैरह, है ना, इंडक्शन वगैरह हम यूज करते हैं किचन में, तो हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तब जाके वो इंडक्शन का सरफेस ऑन होता है।
अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो इंडक्शन का सरफेस ऑटोमेटिकली काम करेगा क्या? नहीं करेगा. You when you will switch on the electricity supply, then the surface of the induction will become hot, and the vessel which you are keeping on the surface of the induction will also become hot. Okay, और उसके जरिए आप you will cook the food. Okay, so these are the examples of some equipments which are based on the heating effect of the electric current, that is electric heater, electric room heater, electric iron और electric kettle. ओके ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, किसके ऊपर बेस्ड हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके और अब यहाँ पे ये जो है ये सारे जो डिवाइस है वो किसमें इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई के बेसिस पे डिपेंड करते हैं. अब जरूरी नहीं है सबको एक ही सब प्रॉपर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगेगा, वो अलग अलग मशीन का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है. ओके अब यहाँ पे उन लोग की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट भी अलग है. इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट इसलिए अलग है बिकॉज this is यहाँ you can see that here I have written here all these elements produce a high amount of heat when electricity passes through them. However, this amount can change depending upon the requirement of the device. So जरूरी नहीं है सारे अप्लायंस को एक ही बराबर का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगे. अलग अलग इक्विपमेंट को अलग अलग सप्लाई लग सकता है. क्यों? क्योंकि इन सब में जो कॉइल यूज होता है, जो वायर कॉइल ऑफ वायर जो यूज होता है वो डिफरेंट है. अगर सब में सेम अमाउंट ऑफ कॉइल ऑफ वायर यूज होगा तो सब में इलेक्ट्रिसिटी भी सेम यूज होगी. लेकिन अगर सब में कॉइल ऑफ वायर अलग अलग है तो आपको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी अलग अलग यूज होगी. तो यहाँ पे क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय सच अप्लायंसेस is different for different size and length of wire used in them. So it is clear कि तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपका जो अलग अलग अप्लायंस में अलग अलग अमाउंट के कॉइल्स लगे हैं, वायर लगे हैं, तो उनका जो हीटिंग अमाउंट है अलग अलग. अगर कोई वायर ज्यादा लंबा है तो जाहिर सी बात है उसको हीटिंग करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, और किसी का वायर अगर कॉइल छोटा है तो उसको कम टाइम लगेगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉइल और द वायर विच आर यूज इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स विल रिक्वायर द करंट. ओके क्लियर है? प्रोडक्शन now production of light in a bulb due to the heating effect of electric current. ओके अब ये क्यों होता है, बल्ब क्यों जलता है? बल्ब क्यों जलता है, क्यों बल्ब जलता है? जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो सर्किट के थ्रू सर्किट में क्या पार्ट है, सर्किट में क्या प्रेजेंट है, मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में दिखाया था, ये दिख रहा है आपको. सर्किट में क्या है, फिलामेंट है. तो ये फिलामेंट है, सर्किट का पार्ट है ये फिलामेंट. जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे ये फिलामेंट के पास जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, और इस फिलामेंट को क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट के जरिए गर्म करेगा, और गर्म करने के कारण ये जो फिलामेंट है वो क्या होगा, ग्लो करना शुरू हो जाएगा. ओके सो द व्हाई द इलेक्ट्रिक बल्ब इज ग्लोइंग, the bulb is glowing because when you supply the electricity the filament gets heated up, and due to the heating up of this filament the it glows up and you will see the bulb is glowing. Okay clear? Now what is an electric fuse? You can see this electrical fuse. There are different types of electrical fuse. Okay यहाँ पे एग्जांपल दिया फ्यूज विच आर यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एंड दिस फ्यूज वी आर यूजिंग इन द होम बिल्डिंग्स. हमारे घर में जो लगा रहता है फ्यूज, वो मीटर वगैरह में, दैट इज द स्टेयर फ्यूज. ओके अब ये क्या है, अब ये फ्यूज का काम क्या है, फ्यूज व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फ्यूज? ओके इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द डैमेज. ये फ्यूज क्या फ्यूज क्यों यूज करते हैं, ये प्रिवेंट करता है डैमेज को. किसके डैमेज को? जब हमारा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से सप्लाई होता है तब उसके जरिए जो डैमेज प्रोड्यूस होगा उसको प्रिवेंट करता है क्या, ये फ्यूज. ओके अब यहाँ पे क्या होगा, अब सपोज कभी अभी अचानक से एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो गया तो क्या होगा, वायर जो रहता है वो जो वायर जो रहेगा वो तो गर्म हो जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी किसके जरिए सप्लाई हो रही है, वायर के जरिए सप्लाई हो रही है, तो वो अचानक से एकदम गर्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा, जिसके कारण सर्किट में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. तो वो उस प्रॉब्लम को रोकने का काम करता है क्या, ये पर्टिकुलर फ्यूज. अब ये फ्यूज किससे बना हुआ है, it is fuse consist of a wire which is made up of metal or an alloy. ये जो रहता है, ये जो फ्यूज जो रहता है इसके अंदर एक वायर रहता है जिसके वो जो या तो मेटल से बना होगा या तो एलॉय से. एलॉय क्या चीज होती है भाई, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन.
अलॉय में जो रहता है मिक्स मेटल्स का या फिर नॉन मेटल्स का अलॉय जो रहते हैं मिक्सचर रहते हैं, और वो पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में रहता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग प्रोपोर्शन में आप जितना मर्जी चाहे उठा के डाल दो, ऐसा नहीं। मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स बट इन अ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन। ओके, तो इसमें जो फ्यूज में जो वायर रहेंगी वो मेटल या फिर अलॉय से बने रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब वायर्स जो रहते हैं जो हाई इलेक्ट्रिक करंट के फ्यूज, जैसे ही आप फ्यूज लगाते हो, फ्यूज अगर आप फ्यूज लगा रहे हो तो इससे क्या होगा, एज द ये अलॉय से बना है या फिर मेटल से बना है, तो जैसे ही अब आप हाई इलेक्ट्रिक करंट पास होगा फ्यूज के जरिए, जैसे ही अब क्या है, पहले डायरेक्ट डायरेक्ट वायर के जरिए नहीं पास हो रहा है, फ्यूज के जरिए पास हो रहा है। ओके, अब जैसे ही हाई इलेक्ट्रिक करंट आया और वो पहले फ्यूज के थ्रू गया, तो फ्यूज में जाएगा, तो फ्यूज में क्या है, फ्यूज में वो वायर है जो कि मेटल या फिर अलॉय से बना है, तो इससे क्या होगा, द ये जो वायर जो रहेगा वो टूट जाएगा एंड फ्यूज ओपन, हेंस नो फर्दर इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू इट। तो ये क्या होगा, ये जो फ्यूज का जो वायर है वो टूट जाएगा, और जो सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जाने से बच जाएगा, और आपका सर्किट डैमेज नहीं हो पाएगा। You can see here, I have written here, the electric fuse consists of a wire which is made up of a metal or an alloy which has a low melting point. As a result, the wire breaks down easily as high current passes through it. As the wire breaks, the circuit of the fuse opens and has no, hence no for the current passes, no further current passes through it. Okay, यहाँ पे for हो गया, actually it is no further current passes through it है, ठीक है, क्लियर है। सो दिस कैन, अब इससे क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट प्रिवेंट करेगा। अब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में फायर कैच नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या, हाउ कैन एन एक्सेसिव करंट पास थ्रू अ सर्किट। ओके, अब आप सोचोगे कि इतना एक्सेसिव, अचानक में एक्सेसिव करंट कहाँ से पास हो जाएगा, व्हाई दिस एक्सेसिव करंट इज विल बी पास। ओके, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का स्विच जो है, सॉकेट, वो जो स्विच रहता है ना उसमें डालते हैं, तो वो क्या करेगा, अचानक से ये जो क्या बोलते हैं, जो स्विच है उसके जरिए अचानक से फ्लक्चुएशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में फ्लक्चुएशन होता है। आप कभी देखो, कभी लो वोल्टेज है, कभी हाई वोल्टेज है, तो कभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ज्यादा होता है, कभी कम होता है, तो देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही अचानक से, अब क्या हुआ, अचानक से हाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुआ, तो क्या होगा, वो सर्किट जो रहेगा, इतना इतना लोड, इतना सप्लाई नहीं ले पाएगा, क्योंकि हर एक वायर, क्योंकि हर सर्किट में क्या है, मैंने क्या बोला, हर सर्किट के अंदर वायर होता है, और हर डिपेंड करता है कि वायर कितना, वायर का अमाउंट कितना है। जितना ज्यादा वायर होगा वो डिपेंड करता है कि वो कितना इलेक्ट्रिसिटी का लोड ले सकता है। अगर वो उसकी कैपेसिटी उतनी इलेक्ट्रिसिटी का लोड लेने की नहीं है, तो क्या होगा, वो सर्किट जो है, वो सर्किट सर्किट का जो वायर है वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी का लोड को सह नहीं पाएगा, और वो टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, अचानक से सर्किट टूटेगा तो स्पार्क निकलेगा और फायर कैच हो सकता है। ओके, ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप बोलोगे कि फायर कहाँ से आया, अब वायर जो रहते हैं उसके ऊपर तो इंसुलेशन लगा रहता है, प्लास्टिक लगा रहता है, फिर क्या फायर कहाँ से आया। अरे भाई, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा, जो हीट प्रोड्यूस होगा उसके कारण जो ऊपर का जो प्लास्टिक कवर रहेगा वो मेल्ट हो जाएगा। अब अगर प्लास्टिक कवर मेल्ट हो गया तो वो जो मेटल्स के जो वायर है, अब वो ऑटोमेटिकली खुले में है, कांटेक्ट में है, तो वो क्या हो गए, वो वायर जो रहते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं, और जिसके कारण अब क्या है, मेटल्स जो है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो रहा था, है ना, और वो उसका इंसुलेशन जो ऊपर का है वो टूट गया है, मेल्ट हो गया है। अब जो मेटल्स जो है वो आसानी से एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं और गर्म भी हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, स्पार्क जनरेट होगा, स्पार्क जनरेट होगा तो फायर होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। ओके, now next is what is CFL. CFLs are compact fluorescent lamp. Okay, this इसका full form याद रखना, CFL are the compact fluorescent lamp. Okay, so this is an example of CFL. Okay, and they are not some few features I have written, just check it. CFLs do not work on heating effect of electric current. They do not have filament inside this. Them instead they are containing two electrodes that produce the light. ये बात याद रखना, बल्ब के जैसे इसके अंदर फिलामेंट नहीं है,
इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं जो कि लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, these bulbs have a fluorescent coating inside them which make the light brighter. Okay, CFL have the save energy and they do not produce heat along with the light. Ordinary bulbs on the other hand waste energy as they are heated while lighting up. तो CFL, आजकल CFL का बहुत डिमांड रहता है. तो CFL एक्चुअली इसी कारण से ज्यादा यूज होता है क्योंकि यहाँ पे इसमें जो है हम फिलामेंट यूज नहीं कर रहे हैं. और फिलामेंट यूज नहीं कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं. और अगर फिलामेंट यूज नहीं करे तो क्या फायदा हो रहा है? फिलामेंट यूज नहीं करने से फायदा ये हो रहा है कि बल्ब जो रहता है वो फिलामेंट की हीटिंग अप पे काम करता है. आपको ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो फिलामेंट गर्म होगा तब जाके वो लाइट प्रोड्यूस होगा. लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है. ओके, ये इसमें आप अगर आप गर्म ज्यादा नहीं करना, हमको गर्म नहीं करना पड़ रहा है, तो मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो कम हो रहा है. ओके, नेक्स्ट, अब दूसरी बार जो हम बोलते हैं कि वो CFL में ISI मार्क होना चाहिए. व्हाट इज दिस ISI मार्क? सो इट इज एक्चुअली this ISI mark stand for Indian Standards Institute, which in ISI Indian Standard Institute actually ये Indian गवर्नमेंट का है. ओके, और ये मार्क जहां भी लगा रहेगा कि ये उनके गाइडलाइंस के, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने कुछ गाइडलाइंस पास किए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए कि इसका ऐसा ऐसा होना चाहिए कंडीशंस. तो अगर उसमें ISI मार्क्स लगा है मतलब वो उन गाइडलाइंस को पास आउट कर रहा है और वो लेने लायक है. अगर ISI मार्क्स नहीं है मतलब इंडियन गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसको उसने फॉलो नहीं किया है. ठीक है, और अगर गाइडलाइन अगर ISI मार्क लगा है तो मतलब एक ये चीज भी है कि वो सेफ है. ओके, so you can see whether it is geyser or fuse or a switch, you can see that they are having what? ISI mark. Okay, now miniature circuit breaker. Okay, आजकल जो है फ्यूज के जगह पे ये लगा रहता है. ये दिख रहा है आपको डायग्राम, पिक्चर दिख रही है? ये एक्चुअली इट इज अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको हम लोग MCB भी बोलते हैं. ओके, आजकल फ्यूज के जरिए ये जो है यूज होता है. अब यहाँ पे क्या है, फ्यूज कैसे काम करता है? मैंने क्या बताया था, फ्यूज कैसे काम करता है? जब एक्सेसिव करंट आएगा तो फ्यूज के अंदर का वायर टूट जाएगा, फ्यूज ब्रेकअप हो जाएगा और सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से रुक जाएगा और वो सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेगा. ओके, अब इससे नुकसान क्या हो रहा है कि फ्यूज एक बार टूट गया तो हम दूसरी बार यूज नहीं कर सकते. लेकिन ये जो है MCB, उसमें क्या है, अब ये MCB में फायदा क्या है? ये MCB में जो वायर है वो टूट के स्विच फ्यूज पूरा खराब नहीं हो रहा है. इसमें जो स्विच दिख रही है, यू कैन सी द स्विच हियर, रेड कलर स्विच हियर. तो व्हाट हैपन, जब एक्सेस सप्लाई ऑफ करंट रहता है और या फिर जब सर्किट में ओवरलोड होने लगने लगता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो ऑटोमेटिकली ये स्विच जो है वो ऑफ हो जाएगा. ठीक है, ऑटोमेटिकली ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी आने से रुक जाएगा और क्या होगा, आपका सर्किट जो है बच जाएगा. तो इससे एक फायदा क्या हो रहा है, बार बार हमको फ्यूज बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि फ्यूज में तो वायर टूट जा रहा था, एक बार खराब हो गया फ्यूज तो हम दूसरी बार यूज नहीं कर पा रहे थे. लेकिन इसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली जैसे ही हैवी लोड होगा इलेक्ट्रिसिटी का तो ऑटोमेटिकली ये स्विच ऑफ हो जाएगा एंड देयर इज नो नीड फॉर यू टू बाय इट अगेन. ओके, नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक करंट, जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है. तो इसी बेसिस पे डेवलप हुआ क्या, इलेक्ट्रिक बेल. ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको ये डिस्कवर करने वाले हैंस क्रिस्टियन और स्टेड थे. याद रखना इस बात को, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिस्टियन और स्टेड. यहाँ पे मैंने नेम मेंशन किया, यू कैन सी दैट. ओके, अब मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं, इसको करने के लिए हमने क्या किया, फिर से सर्किट लगाया. सर्किट में हमने क्या किया, बैटरी लगाया, स्विच लगाया है और एक मैग्नेटिक कंपास नीडल यहाँ पे प्लेस कर दे. जैसे ही आपका स्विच ऑन होगा, जैसे ही आपका स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास होगा. इलेक्ट्रिसिटी पास होने से आप क्या देखोगे कि ये जो कंपास नीडल है इसमें क्या होगा, देयर विल बी डिफ्लेक्शन. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन शुरू करा. कंपास जो निडल है वो कंपास जो रहता है ना, आप लोग डायरेक्शन देखने के लिए यूज करते हैं, वो कंपास को हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे वो अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है. यानी अर्थ से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है तभी वो कंपास डिफ्लेक्शन शो करता है. तो वही कंपास को हम यहाँ रख लेंगे.
तो यहाँ पे क्या वो अगर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तभी वो कंपास का निडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, अदरवाइज वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, ये कंपास को प्लेस कर दिया कहाँ पे, सर्किट में। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यू आर सीइंग द डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल, that means what it is, you are showing electricity is producing magnetic effect। और एक और चीज जो आपको मुझे बताना है, आप यहाँ पे देख सकते हो बैटरी में मैंने दो लाइन बनाया, दो टाइप के लाइन है। यहाँ पे आप शॉर्ट लाइन में देखो नेगेटिव है और लार्ज लाइन पे आपका क्या है, पॉजिटिव। तो याद रखना बैटरी के शॉर्ट टर्मिनल को नेगेटिव वो बोलते हैं और लॉन्ग टर्मिनल को हम यहाँ पे पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसी पे बेस्ड है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमने क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या करना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए आपको एक मेटेलिक आयरन लेना है, आयरन का एक पीस ले लो, उसके ऊपर आप मेटेलिक वायर ले लो। ओके, मेटेलिक वायर ले लो और इसको कॉइल कर दो, ऐसा जिग ऐसा कॉइल कर दो और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, एक स्मॉल मैग्नेट के जैसे ये काम करेगा। और ये इसका यूज कहाँ पे होता है, ये तो बहुत सारी जगह पे यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल हो गया, इसमें हो गया, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में हो गया, बहुत सारे इक्विपमेंट्स में ये यूज होता है। ये इलेक्ट्रिक बेल में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक बेल इसी के बेसिस पे काम करता है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये टर्मिनल, ये जो आयरन का कॉइल है इसके ऊपर क्या लगा है, ये वायर है, ये पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे कनेक्टेड है, स्प्रिंग से कनेक्ट है, और ये हैमर है और ये गोंग है जिसके ऊपर मतलब ये हैमर स्ट्राइक करेगा तो आवाज आएगा, और ये स्विच है। ठीक है, और यहाँ पे बैटरी है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बेल है। तो अब यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बेल है, तो आप कैसे काम करोगे, आपको सबसे पहले जाहिर सी बात है स्विच को ऑन करना पड़ेगा। एज सुन एज यू स्विच ऑन द, देयर विल बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द बैटरी। अब बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो कहाँ पे जाएगा, आपका ये जो कॉइल्ड प्लेस है के ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये कॉइल प्लेस में जाएगा तो इससे क्या होगा, ये आपका ये जो आपको दिख रहा है ये कॉइल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पास होगा और ये क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा मतलब ये क्या है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो ये एक छोटा सा मैग्नेट हो गया। अब ये जो गोंग जो है वो किससे बना है, आयरन से बना है। अब यू नो दैट मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो ये जो हैमर है कंटिन्यूअसली किसके ऊपर अटैक होगा, ये गोंग के ऊपर, और उसको स्ट्राइक करेगा तो जिसके कारण क्या होगा, आवाज आएगा। क्लियर है। और जैसे ही स्विच ऑफ कर दिए आपने स्विच ऑफ कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम बंद हो जाएगा, तो वो हैमर जो है वो स्ट्राइक करना भी बंद कर देगा और आवाज भी रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक बेल। ओके।